دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 26 پیشکش میرے کارواں۔ تم مجھے کبیر شاہ کے اڈے کے بارے میں بتاؤ، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ میں اپنے پاپا کے ذریعے اس کا بندوبست کرا دوں گی۔ تم نہیں جانتے کہ میرے پاپا کے تعلقات کتنے اوپر تک ہیں، کئی پولیس آفیسر سے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے بڑے ہی سخت انداز میں کہا۔ تم اپنے پاپا کو اس جنگ میں نہ جھونکو، یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کھیل مجھے کس طرح کھیلنا ہے۔ میں اس کھیل میں تمہارے قدم با قدم رہنا چاہتی ہوں، وہ ونڈ سکرین کے پار سڑک کو گھورتے ہوئے بڑے مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے اسی سختی سے کہا، صدف اب بھی وقت ہے، تم اپنا راستہ الگ کر لو۔ تم نہیں جانتی، خدا کی قسم تم نہیں جانتی، میں آتش اور خون کے کس کھیل کا حصہ بنا ہوا ہوں۔ میرے ساتھ رہو گی تو تمہارا سکھ چین چھن جائے گا۔ ساحل کو بھی میری ہی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ تم میرے دشمنوں کو شمار کرنے بیٹھو گی تو گنتی ختم ہو جائے گی۔ تم مجھے اتنے دشمنوں سے ڈرانے کی کوشش نہ کرو وجدان۔ اس کے لہجے میں چٹان جیسی سختی تھی، اور جہاں تک راستہ الگ کرنے کا تعلق ہے تو اس کا وقت گزر چکا۔ میں اس راہ پر تمہارے ساتھ اتنا آگے بڑھ چکی ہوں کہ اب واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور فولادی لہجے میں بولی، تمہیں چاہے اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اس کے آخری جملے نے میرے دل پر ایک زوردار گھونسا مارا۔ مجھے اپنے تن بدن میں جھنجھناہٹ سی محسوس ہوئی۔ صدف نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں بہت گہری بات کہہ دی تھی۔ میں ایسا بھی نادان بچہ نہیں تھا کہ اس کی بات کو سمجھ نہ پاتا۔ میں تو اس کے کچھ کہے بغیر بھی اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا۔ فرید پاشا اور منہاس باقر جیسے تجربہ کار پیش گوئی کرنے والے لوگوں کی بات کیوں کر غلط ثابت ہو سکتی تھی؟ صدف کے انداز اور اعتبار مجھ سے ڈھکے چھپے نہیں تھے۔ اس نے بہت پہلے مجھ پر اپنے عزائم کا اظہار کر دیا تھا اور میں نے بہت پہلے ہی اس کے عزائم کو بھانپ لیا تھا۔ اس کے جذبات قابل قدر تھے، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ صدف ایک اچھی اور جانسار ساتھی تھی جس کی خاطر میں خود کو بڑے سے بڑے خطرے میں ڈال سکتا تھا، لیکن کسی بھی صورتحال میں وہ ساحل کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ حقیقت پسندی بہت ہی مشکل کام ہے، اور حقیقت وہی تھی جو میں نے بیان کر دی تھی، لیکن صدف سے کھل کر یہ سب کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ آنے والے حالات اسے سمجھا دیتے۔ میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے کنکھیوں سے صدف کو دیکھا۔ وہ بڑی گہری سنجیدگی سے اپنے سامنے پھیلی ہوئی سڑک کو تک رہی تھی۔ میں اندازہ نہ کر سکا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہوگی۔ بہرحال وہ جس قسم کے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی وہ اس کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ میں گلبرگ کے نزدیک سے گزرتے ہوئے کبیر شاہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ میری چھٹی حس نے آج تک مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا۔ کبیر شاہ کو ایمبولینس میں دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ رکھا مالی سے آ رہا ہے۔ کبیر شاہ سعود کا نگران اور شعیب غوری سے بہت ہی قریب تھا۔ لاہور کے مضافات میں شاہ جی کا پایا جانا حالی از علت نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر مجھے شعیب غوری کی دھمکی یاد آ گئی۔ اس نے فرید پاشا کے بنگلے پر فون کر کے مجھے دھمکی دی تھی کہ عنقریب وہ مجھے بہت بڑا نقصان پہنچانے والا ہے۔ جب میں نے متروک کنویں سے برآمد ہونے والے سونے کے بارے میں اسے باور کرایا کہ میں اسے اپنا حصہ ہضم نہیں کرنے دوں گا تو شعیب نے بڑے ہی واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ اس نے میرے حصے کو استعمال کر کے میرے لیے کوئی بہت بڑی مصیبت ہری دی ہے، اور جلدی وہ مصیبت میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ شعیب غوری جیسا طاقتور شخص کھوکھلی باتیں نہیں کر سکتا۔ متروک کنویں سے برآمد ہونے والا سونا کم از کم 25 کروڑ روپے مالیت کا تھا، اور معاہدے کی روح سے میرا حصہ 10 کروڑ طے ہوا تھا۔ کہیں 10 کروڑ کی یہ رقم خرچ کر کے شعیب نے میرے دشمن اور چودھری نوازش علی سے الحاق تو نہیں کر لیا تھا؟ اس سوال نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس سوال میں واقعاتی صداقت موجود تھی۔ عین ممکن تھا شعیب غوری نے 10 کروڑ روپے کے عوض آدھا سونا چودھری کے حوالے کر دیا ہو اور اس کے بدلے ساحل کو حاصل کر لیا ہو۔ میرا دماغ تپتے ہوئے تندور کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ میری سانسوں میں ایک پھنکار سی اتر آئی۔ یہ بات صدف سے چھپی نہ رہ سکی اور وہ تشویشناک نظر سے میری جانب دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے وجدان، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ کچھ نہیں، تھوڑا ذہنی دباؤ ہے، اس دباؤ کو ذہن پر سے ہٹانے کی کوشش کرو، وہ کسی اتالیق کے انداز میں بولی۔ تم ایک بہت بڑا مارکا کرنے جا رہے ہو۔ میں نے گہری سانسیں لیتے ہوئے کہا، مشورے کا بہت ہی شکریہ، میں کوشش کر رہا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال ایک مرتبہ پھر شکریہ، وہ خفگی امیز لہجے میں بولی۔ تمہارا یہ بیگانگی والا انداز مجھے بہت دکھ پہنچا رہا ہے، اس طرح بار بار شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوری، میں آئندہ خیال رکھوں گا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔
वो दुस्दीदा नजर से मुझे देखने लगी। मेरी सोच दोबारा चौधरी नवाजिश अली और शोएब गौरी की तरफ मुड़ गई थी। ये दोनों मेरी जिंदगी के अहम किरदार साबित हो रहे थे। चौधरी नवाजिश अली मदफून सोने के लिए बावला हो जा रहा था। सोने के राज वाली डायरी हासिल करने के लिए उसने कदम कदम पर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी की थी। एक मौके पर उसे अपनी शिकस्त वाज़िया नजर आने लगी। मैंने ये भी महसूस किया था कि वो मुझसे बहुत ही हाइफ था। मैंने अंदरूनी सिंध और फिर कराची में उसके और उसके साथियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था। उसे अपने नमक हवारों को वाज़िया अहकाम दे रखे थे कि मुझे रखावाली तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि अब तक बचता चला आया था, वरना दारा जैसा बदकमाश और बदनाम जमाना लोगों ने बचपन ही से मेरा जीना हराम कर रखा था। इस तवील असाबी और जिस्मानी जंग ने चौधरी नवाजिश को ये बावर करा दिया था कि अगर मैं उस तक पहुंच गया तो फिर उसकी खैर नहीं होगी। उसने मुझे हमेशा खुद से दूर रखकर उलझाने की कोशिश की थी और उसकी ख्वाहिश रही थी कि किसी तरह सोने के राज वाली डायरी उस तक पहुंच जाए। अब खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका था। मैंने दोस्ती और फ्रेब खाकर बल्कि डायरी के मुफीद सफात शोएब गौरी के हवाले कर दिए थे और ये धोखा मैंने दोस्ती की आड़ में खाया था। डायरी के गैर मुफीद हिस्सा एक ड्रामे से गुजरकर चौधरी नवाजिश तक पहुंचा था, जिसे देखकर उसे अपना सर पीट लिया था। मुझसे कारामद सफात हासिल करने के लिए उस बदबख्त ने साहिल को अगवा करा लिया। वो जानता था कि मैं साहिल के पीछे मोजा रखा वाली पहुंचूंगा और वो मुझे ट्रैप कर लेगा। मैं चौधरी की ख्वाहिश और अपने मिशन के मुताबिक साहिल को हासिल करने के लिए रखावाली की जानब रवा दवा था कि सफेद एम्बुलेंस वाला वाकया पेश आ गया। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे आगाह कर रही थी कि शोएब गौरी और चौधरी नवाजिश अली के दरमियान कोई बहुत बड़ी डील हुई है और वो दोनों मिलकर मेरा जीना हराम कर देंगे। मैंने गुज़श्ता 2-3 माह में शोएब गौरी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ हो गया था। वो यहूदी लाबी का आलाकार बना हुआ था और पाकिस्तान, खसूसन कराची को दहशतगर्द हित्ता साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। शोएब गौरी मेरी सलाहियत से आगाह था, इसलिए वो बहरहाल मुझे मुर्दा देखना चाहता था। वो मेरी कमजोरी से वाकिफ था। वो जानता था कि अगर साहिल उसके कब्जे में आ गई तो मुझे छापना बहुत ही आसान हो जाएगा। साहिल और सऊद के हवाले से मुझे वो झांसा देने की कोशिश भी कर चुका था, लेकिन मैंने उसकी ये कार्रवाई नाकाम कर दी थी। मैंने मदफून सोने वाला राज मुंतकिल करते हुए शोएब गौरी को चौधरी नवाजिश अली और अपनी दुश्मनी के बारे में तफसीलन बता दिया था। शोएब मुझे काबू करने के लिए चौधरी की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता था और फोन पर होने वाली गुफ्तगू से जाहिर होता था शोएब ने इस दोस्ती की खातिर मेरे हिस्से का सोना या फिर 10 करोड़ रुपए चौधरी की नजर कर दिए होंगे। इन दोनों शैतानों के बारे में सोचते हुए मेरा ध्यान साहिल की तरफ चला गया। फिर सफेद चादर से ढका हुआ स्ट्रेचर मेरे तस्वुर में घूम गया। मेरे दिल की गवाही तो ये थी कि स्ट्रेचर पर साहिल के सिवा और कोई नहीं हो सकता। उससे एक ही नतीजा बरामद हुआ था कि मेरे दुश्मनों ने कंधे से कंधा मिलाकर मुझसे लड़ने का फैसला कर लिया था और मेरी साहिल अब चौधरी की कोर्ट से निकलकर शोएब की कोर्ट में पहुंच चुकी थी या पहुंचने वाली थी। मुझे बैक वक्त 2 फ्रंट पर लड़ना था और इस तरह लड़ना था कि लड़ाई का हक अदा हो जाता। साहिल मेरी जाने तमन्ना मेरे लिए बहुत ही अहम थी। मैं उसे हासिल करने के लिए हर हद से गुजर सकता था, चाहे वो खद मेरी जिंदगी ही क्यों न होती। मैंने हाइलक्स को अस्पताल के सामने से गुजारा और 200 गज के फासले पर एक सड़क के किनारे रोक दिया। दूध के ड्रम से लदी फंदी गाड़ी को अस्पताल के अंदर ले जाना किसी तौर भी मुनासिब नहीं था। सदफ मेरे इशारे की मुंतजिर थी। हम दोनों टोयोटा हाइलक्स से नीचे उतर आए। चंद लम्हे बाद हम मज़कूरा प्राइवेट अस्पताल के अंदर थे। न्यू कैंपस का इलाका बहुत ही साफ सुथरा और सरसब्जो शादाब था। बाज लोग उसे जन्नत नजीर भी कहते हैं। बीचों बीच बहती हुई ब्रांच कैनाल ने इलाके के हुस्न और खूबसूरती में बेपनाह इजाफा कर दिया था। पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी अजीमुशान दरसगाह भी न्यू कैंपस की पहचान है। हम दोनों तेज कदमों से चलते हुए अस्पताल के अहाते में दाखिल हो गए। मैंने चारों जानब एक ताराना निगाह दौड़ाई और फिर मेरी नजर उस पार्किंग पर रुक गई जहां 3 एम्बुलेंस गाड़ियां पहलू ब पहलू खड़ी थीं। मैंने मज़कूरा पार्किंग की जानिब कदम बढ़ा दिए। सदफ ने मेरी तकलीद की। हमने अपना अपना बैग कंधे पर उठा रखा था। मैंने पार्किंग में पहुंचकर तमाम एम्बुलेंस को 2-3 मरतबा चेक किया। उन सर पर अस्पताल का महसूस लोगो बना हुआ था, मगर वो टोयोटा हाईएस मुझे कहीं दिखाई न दी जिसकी तलाश ने मुझे हैजान में मुब्तला कर रखा था। वो इनमें नहीं है, मैंने सदफ की तरफ देखते हुए बोला। वो बोली, मुझे तो तमाम एम्बुलेंस एक जैसी लग रही हैं, तुमने कैसे जाना? हमारी मतलूबा गाड़ी यहाँ मौजूद नहीं?
जिस सफेद एम्बुलेंस का ताक़ुब करते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं, मैंने उसी वक्त उसका नंबर ज़हन नशीन कर लिया था। मैंने इस तरह अंदाज में कहा, क्या तुम्हें 1369 नंबर की कोई एम्बुलेंस यहाँ नजर आ रही है? सदफ ने वहां खड़ी एम्बुलेंस की नंबर प्लेट्स पर निगाह दौड़ाई और मायूसी से नफी में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, इसका मतलब है कि वो एम्बुलेंस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। ये कैसे हो सकता है वजदान? सदफ ने उलझनज़दा नजर से मुझे देखा। वो तो लगभग आधा घंटा हमसे आगे थी। मैंने कहा, मुमकिन है उन्होंने इधर का रुख ही ना किया हो, वो लोग किसी और मंजिल की जाने बढ़ गए हों। मगर तुमने तो कहा था वो सीधे अस्पताल ही पहुंचेंगे। वो मजीद उलझ गई। इसके अलावा वो लोग और कहाँ जा सकते हैं? सदफ बिल्कुल ठीक कह रही थी। पहले मेरा भी यही ख्याल था कि साहिल को अस्पताल ही पहुंचाया जाएगा, लेकिन शुएब चौधरी तालु के बारे में सोचने के बाद मेरे ख्यालात में बहुत ही नुमाया तब्दीली वाक़या हो गई थी। और इस सूरत में मुमकिन नहीं था कि वो एम्बुलेंस सीधी अस्पताल आती। पहले वो साहिल को उनकी मतलूबा मंजिल तक पहुंचाती, फिर अस्पताल का रुख करती। मौजूदा सूरत हाल और 1369 वाली एम्बुलेंस की गैर मौजूदगी भी इसी जानिब इशारा कर रही थी। यकीनी तौर पर उस एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया गया था। ये हालात हाथ तशवीशनाक थे। अगर मैं जल्द अज जल्द साहिल का सुराग लगाने में कामयाब ना होता तो पता नहीं उसे कहां से कहां पहुंचाया जाता। मैंने सदफ की बात के जवाब में कहा, मैंने पहले तुमसे जो कुछ कहा था वो यहाँ पहुंचकर गलत साबित हो रहा है। मेरा ख्याल है हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। वो वाली हम किसी और जगह रुककर इंतजार कर लेते हैं, किसी ऐसी जगह जहां से हम पार्किंग एरिया निगाह में रख सकें, लेकिन हम किसी की नजर में ना आए। मुमकिन है अगले चंद लम्हों में हमारी मतलूबा एम्बुलेंस अस्पताल में पहुंच जाए। इसकी तजवीज निहायत ही माकूल थी, लिहाजा मैं उसके साथ चलते हुए एक ऐसे गोशे में आन खड़ा हुआ जहां से अस्पताल का मेन गेट और पार्किंग पर गहरी नजर रखी जा सकती थी। हम लगभग दोपहर 1 बजे अस्पताल पहुंचे थे। मजीद 15 मिनट के इंतजार के बाद भी कोई हाथ रहा नतीजा जब बरामद ना हुआ तो मेरी बेकरारी आसमान को छूने लगी। मैंने सदफ से कहा कि मजीद इंतजार वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। साहिल को अस्पताल नहीं लाया जाएगा। मेरे ख्याल में से कहीं और पहुंचाया जा चुका है, मगर कहाँ? उसने सवालिया नजर से मुझे देखा। हम साहिल तक कैसे पहुंचेंगे? हमें कैसे मालूम होगा उसे कहाँ पहुंचाया गया है? मैंने उसका हाथ थाम कर एक जानब बढ़ते हुए कहा, आओ अस्पताल के मालूमाती काउंटर से कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। साहिल का ना सही एम्बुलेंस का ही कुछ सुराग मिल जाए तो मैं उस सुराग को थाम कर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊंगा। हम दोनों चलते हुए एक ऐसे काउंटर पर पहुंचे जहां से हमारी मतलूबा मालूमात हमें हासिल हो सकती थी। वो जदीद सहूलियात से लैस एक महंगा प्राइवेट अस्पताल था जहां पर हर शोबा कंप्यूटर के जरिए आपस में मुंसलिक था। वहां की सफाई और निजाम ने मुझे खासा मुतासिर किया था। मैंने काउंटर के पीछे मौजूद खुश शक्ल लड़की से पूछा, सुनिए, मुझे अपनी एक अजीजा के बारे में मालूमात दरकार है। आपकी अजीजा का नाम क्या है? उस लड़की ने पूछा। कोई पेशेंट आइडेंटिटी हो तो वो भी बता दें। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा कि मरीजा का नाम साहिल है। मैं उसकी किसी आइडेंटिटी से वाकिफ नहीं, बस इतना जानता हूँ कि उसे अभी अभी अस्पताल में लाया जा चुका है या लाया जाने वाला है। काउंटर पर मौजूद लड़की ने उलझनज़दा नजर से मुझे देखा। आप भी अजीब बातें कर रहे हैं। खैर, मैं देखती हूँ साहिल नाम की कोई पेशेंट हमारे अस्पताल में एडमिट हुई है या नहीं। बात करने के दौरान में वो कंप्यूटर स्क्रीन भी देखती रही और कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां भी हरकत में रहीं। आधे मिनट की कोशिश के बाद उसने ऐलान फरमाते हुए कहा, सॉरी सर, साहिल नाम की कोई मरीजा हमारे अस्पताल में दाखिल नहीं हुई। मुमकिन है अभी उसके रिकॉर्ड में इंदराज ना हुआ हो। मैंने एक मोहूम उम्मीद की उंगली थामते हुए कहा, उसे अस्पताल में आए हुए 1 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं हुआ। उसने मेरी तशफी के लिए फोन का रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ किसी से बात करने लगी। वो अस्पताल में आने वाले नए मरीजों के बारे में दरियाफ्त कर रही थी। इस गुफ्तगू में 2-3 मरतबा साहिल का नाम भी आया था। फिर उसने मुझसे पूछा, आपकी अजीजा कहाँ से आने वाली थी? मोजा रखा वाली से। मैंने बेसाख्ता कहा, ये एक सरहदी गांव है। उसे आपकी भेजी हुई एम्बुलेंस नंबर 1369 में अस्पताल लाया जाने वाला था। फिर उसके बाद दूसरी तरफ से किसी से बात की उसने और रिसीवर रखने के बाद बोली, सर, आपकी मरीजा अभी तक इस अस्पताल में नहीं पहुंची। मैं एम्बुलेंस के बारे में कुछ नहीं जानती, आप तौफीक साहब से मालूम कर लें। ये तौफीक साहब हमें कहाँ मिलेंगे? मैंने पूछा। उसने कॉरिडोर की जानिब इशारा किया तो मैं तौफीक नामी उस शख्स के दफ्तर की लोकेशन बता दी। हम दोनों फौरन से बेशतर तौफीक के पास पहुंच गए। उसका ताल्लुक अस्पताल की इंतजामिया से था। इस दौरान में मैंने अपने जहन में एक नया लाहे अमल तैयार कर लिया था। मैं तौफीक से साहिल के बारे में कुछ नहीं पूछता, मगर मतलूबा एम्बुलेंस के बारे में जानने की कोशिश करता। एक बात का मुझे यकीन हो चला था कि साहिल को इस अस्पताल में लाया गया था और ना ही लाया जाने वाला था। फिर मैं उसका जिक्र छेड़कर हाँ खुद को क्यों मशकूक करता? अगर मुझे मतलूबा एम्बुलेंस के बारे में मालूमात हासिल हो जाती तो मैं साहिल तक पहुंचने की कोशिश कर सकता था।
तौफीक से मुख्तसर गुफ्तगू के बाद पता चला कि हमारी मतलूबा एम्बुलेंस सुबह से गई हुई है और अभी थोड़ी देर पहले वापस आने वाली है। फिर उसने रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा कि करीम को अब तक आ जाना चाहिए था। अब्दुल करीम इस एम्बुलेंस के ड्राइवर का नाम था। मैंने पूछा एम्बुलेंस सुबह से कहाँ गई हुई थी? तौफीक के इंकशाफ ने मेरे दिल की धड़कन को हद दर्जा बढ़ा दिया था। वो जवाब में बताने लगा कि एक डेड बॉडी को अहमदनगर पहुंचाना था। चौधरी निजामुद्दीन पिछले एक हफ्ते से हमारे अस्पताल में दाखिल थे। गुज़श्ता रात उनका इंतकाल हो गया। उन्हीं की मैयत को अहमदनगर पहुंचाने के लिए करीम एम्बुलेंस लेकर गया था। मेरे ख्याल में वो आने ही वाला था। मैंने तौफीक से यही बहाना किया था कि मैं एम्बुलेंस के ड्राइवर से मिलना चाहता हूँ, इसीलिए वो मुझे तसल्ली दे रहा था कि करीम अस्पताल पहुंचने ही वाला है। मैंने तौफीक से मजीद कोई बात न की और हम उसके कमरे से निकल आए। मैंने तौफीक से अब्दुल करीम की रिहाइशगाह का पता भी मालूम कर लिया था। तौफीक के इंकशाफ ने मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। अहमदनगर रखावाली के शिमाल में वाक़ एक छोटा सा गांव था। मैं चौधरी निजामुद्दीन के नाम से भी वाकिफ था। उसकी जमीनें चौधरी नवाजिश अली की जमीनों से मिली हुई थी। जब मैं शोएब गौरी के साथ मतरूक कुएं वाले सोने को बाजियाब कराने की मंसूबाबंदी कर रहा था तो चौधरी निजामुद्दीन की अराजी भी जेर बहस आई थी और हमारा अंदाजा था कि उसकी जमीन इस्तेमाल करके हम कुएं की तह तक पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन कुएं और चौधरी निजामुद्दीन की जमीन में 1.5 मील का फासला हायल था। इसलिए शोएब ने निजामुद्दीन के नाम पर क्रॉस करने के बाद रामदास की जमीन का इंतखाब किया था। रामदास की जमीन सरहद की दूसरी तरफ वाक़या थी, जहां से मतरूक कुएं चंद गज के फासले पर थे। फिर ये कि रामदास और चौधरी नवाजिश अली के दरमियान में दुश्मनी भी चल रही थी। चुनाचे बाद अज़ा यहूदियुल नस्ल बरतानवी बिजनेसमैन मिस्टर नील आर्मर ने रामदास और उसकी जमीन को इस्तेमाल करके बरसों से दफन मतरूक कुएं का राज पा लिया था। तौफीक के इंकशाफ के बाद ये तमाम बातें मेरे दिमाग में चकरा रही थी। अगर वो एम्बुलेंस चौधरी निजामुद्दीन की डेड बॉडी को अहमदनगर छोड़ने गई थी तो फिर कबीर शाह के हत्थे कैसे चढ़ गई? साहिल तो रखावाली में चौधरी नवाजिश अली की कैद में थी, वो एम्बुलेंस में किस तरह पहुंची? ये और इस नौयत के दीगर दर्जनों सवालात के अब सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस का ड्राइवर अब्दुल करीम ही जवाब दे सकता था। अगर वो मेरे हत्थे चढ़ जाता तो मैं उसकी जुबान खुलवा लेता। फिर साहिल तक पहुंचना मेरे लिए चंदा मुश्किल नहीं था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि सदफ की आवाज मेरी समाज से टकराई। वजदान, आइंदा के लिए तुमने क्या सोचा है? क्या अस्पताल में रुककर अब्दुल करीम का इंतजार करें या किसी और तरफ चलना है? मैंने कहा मैं मजीद आधा घंटा इंतजार करूंगा, उसके बाद कोई और कदम उठाऊंगा। हम चलते हुए उस मुकाम पर आगे जहां से गेट और पार्किंग की निगरानी की थी। सदफ ने कहा कि अगर हम प्रोग्राम के मुताबिक सफर करते रहते तो इस वक्त सैयदपुर में फरीद अंकल के पास होते, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि आइंदा चंद रोज तक हम सैयदपुर का रुख कर सकें। तुम कम से कम एक फोन करके अंकल को इस वाक़े की इतला तो दे दो। मैंने इस्ताशी नजर से सदफ को देखा और कहा तुम यहीं रुक कर निगरानी जारी रखो, मैं एक फोन करके आता हूँ, अभी वापस आ जाऊंगा। अस्पताल में आने वालों की सहूलत के लिए कई मकामात पर पब्लिक कॉल काउंटर बने हुए थे। मैं से ही एक काउंटर की जाने बढ़ गया। मैंने सैयदपुर में फोन मिलवाया। थोड़ी देर के बाद फरीद पाशा लाइन पर आ गया। यार वजदान, तुम कहाँ गायब हो? मेरी आवाज सुनते ही वो जल्दी से बोला। मैंने कहा कि मैं इस वक्त न्यू कैंपस लाहौर के एक प्राइवेट अस्पताल में खड़ा हूँ। फिर मैंने अस्पताल का नाम भी बता दिया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में बेपनाह तशवीश थी। हैरियत तो है? मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में फरीद पाशा को बताया कि मज़कूरा अस्पताल में मैं क्या कर रहा हूँ और ये कि हैरियत बिल्कुल नहीं है। वो गंभीर आवाज में बोला, वजदान, तुमने जो हालात बताए हैं उनकी रोशनी में मैं कह सकता हूँ कि साहिल को अस्पताल में नहीं लाया जाएगा। मुझे तो ये कोई और ही चक्कर मालूम हो रहा है। तुम वहाँ वक्त जाया ना करो। फिर क्या करूँ? बेसाख्ता मेरी जुबान से फिसल गया। इन अल्फाज में अच्छी खासी कड़वाहट थी। वो तसल्ली अमीज लहजे में बोला, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो। मेरा मशवरा यह है कि तुम पहली फुर्सत में इस एम्बुलेंस या उसके ड्राइवर को ट्रेस करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी ये कोशिश कामयाब होगी तो साहिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, मैंने कहा। फरीद पाशा ने कहा कि चौधरी निजामुद्दीन की मौत की खबर सैयदपुर पहुंच चुकी है। कैसी इत्तेफाक की बात है कि आज अब्बा जी की तदफीन भी है और चौधरी निजामुद्दीन की भी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बात के एहतमाम पर उसकी आवाज भरा गई। मुझे अफसोस है पाशा कि मैं तुम्हारे वालिद के जनाजे में शिरकत नहीं कर सकूंगा, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। साहिल का मामला मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ। वो बुरा मनाए बगैर बोला, इसलिए तुम्हें परेशान या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुम फिक्र न करो। इन नाजुक तरीन हालात में भी मैं तुम्हारे काम आने की कोशिश करूंगा। तुम मुझे नादम कर रहे हो फरीद, मैंने जल्दी से कहा। तुम पर जो गुजर चुकी है मुझे इसका एहसास है। फरीद पाशा ने एक हल्का सा कहका लगाया था। हम उस कहकहे में वो महसूस तरंग मौजूद नहीं थी जो पाशा का हासा थी।
बहरहाल उसकी जिंदा दिली किसी चैलेंज की मोहताज नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि वो किन आहनी असाब का मालिक है। कह के एहतमाम पर उसने कहा, वजदान मुझ पर तो गुजर चुकी जो गुजरना थी, लेकिन तुम पर गुजर रही है, इसीलिए मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। पाशा हर हाल में दोस्ती निभाना जानता था। उसकी आवाज जज्बात से लबरेज थी। चंद लम्हात की तवक्कुफ के बाद उसने कहा कि अब्बा जी की तदफीन असर और मगरिब के दरमियान होगी। तुम 1 घंटे बाद मुझे फोन करो। मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि रखा वाली में क्या पोजीशन है। अगर साहिल वहां से रुखसत हो चुकी है तो मुझे मालूम हो जाएगा। मैंने रखा वाली में मौजूद अपने बंदूक को हासा टाइट कर रखा है। मैं अभी इनसे रिपोर्ट लेता हूँ। बावजूद कोशिश के भी मैं पाशा से ये न कह सका कि खुद को इस बखेड़े में न डाले और पूरी तवज्जो से अपने मामलात निपटाए। इंसान बुनियादी तौर पर बहुत ही खुदगर्ज वाकया हुआ है। मुझे इस बात का एहसास था कि फरीद पाशा खुद एक बहुत बड़े इम्तिहान में मुब्तला था, लेकिन मुझे अपनी बिपता उसे सुनाना पड़ी। साहिल के मामले में मैं बेइख्तियार सा होकर रह गया था। उसके सिवा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता था, और अब तो वो भी कई दिनों से दिखाई नहीं देती थी। सिर्फ उसकी यावर यादें और मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई थी। मैंने 1 घंटे के बाद पाशा को फोन करने का वादा कर लिया। उसने पूछा, गुलबर और फाजले कॉलोनी वाली कोठियों का क्या हाल है? मैंने उसकी परेशानियों को बढ़ाना मुनासिब न समझा और कहा, तुम उधर से बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं था। पाशा के चले आने के बाद वहां जो हालात पेश आए थे वो हाथ से संगीन और गैर मामूली थे। अगर मैं इसकी तफसील में पड़ जाता तो पाशा की जहनी उलझन में इजाफा हो जाता। साहिल वाला मामला तो बीच में ही आ गया था। मैं तो सिर्फ उसे अपने सईदपुर न पहुंचने की वजह बताना चाहता था। मजीद चंद बातों के बाद मैंने फोन बंद कर दिया और आहिस्ता कदमों से चलते हुए सदफ के पास आ गया। हमारी मतलूबा एम्बुलेंस अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। इंतजार का एक एक लम्हा मुझ पर क्यामत बनकर टूट रहा था, और इस बात में किसी शक शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि साहिल को नहायत ही सिफाई के साथ कहीं इधर उधर कर दिया गया था। सदफ ने ख्याल करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्बुलेंस का ड्राइवर अब्दुल करीम तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिल गया हो और उन्हें उनके हस्बे मंशा कहीं पहुंचा दिया गया हो? इस बात के इम्कानात कम अज कम हैं। मैंने सदफ की जानिब देखते हुए कहा, अगर ड्राइवर अपनी मर्जी से कबीर शाह का साथ दे रहा होता तो अब तक उसे अस्पताल में होना चाहिए था। ताहिर ये जाहिर कर रही है कि उसे गन पॉइंट पर इस्तेमाल किया गया है। वैसे मैंने जुमला अधूरा छोड़कर गहरी सांस ली और बात जारी रखते हुए कहा, कबल अज वक्त कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। ऐन मुमकिन है कि अब्दुल करीम की मर्जी से ये सब कुछ हुआ हो और वो अपनी मर्जी से कबीर शाह के साथ हो और साहिल को किसी खुफिया ठिकाने पर पहुंचाने के बाद इधर का रुख करे। सदफ ने कहा कि इस वाक़े ने तुम्हारे जहन पर बहुत ही बुरा असर किया है। तुम पहले एक बात कहते हो फिर खुद ही कमजोर लहजे के साथ उसकी नफी कर देते हो। तुम ऐसे तो नहीं थे वजदान? हाँ, मैं ऐसा नहीं था, मैंने गर्राहट से मुशाबा अंदाज में कहा। वो गुफ्तगू बदलते हुए बोली, पाशा अंकल ने क्या कहा है? उसने 1 घंटे बाद फोन करने को कहा है। मैंने गेट की जानिब देखते हुए कहा, जब तक वो वहां के हालात से बाहबर हो जाएगा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैंने कहा, मुमकिन है उन्होंने इधर का रुख ही ना किया हो, वो लोग किसी और मंजिल की जानिब बढ़ गए हों, मगर तुमने तो कहा था वो सीधे अस्पताल ही पहुंचेंगे। वो मजीद उलझ गई। इसके अलावा वो लोग और कहाँ जा सकते हैं? सदफ बिल्कुल ठीक कह रही थी। पहले मेरा भी यही ख्याल था कि साहिल को अस्पताल ही पहुंचाया जाएगा, लेकिन शुएब चौधरी तालु के बारे में सोचने के बाद मेरे ख्यालात में बहुत ही नुमाया तब्दीली वाक़या हो गई थी। और इस सूरत में मुमकिन नहीं था कि वो एम्बुलेंस सीधी अस्पताल आती। पहले वो साहिल को उनकी मतलूबा मंजिल तक पहुंचाती, फिर अस्पताल का रुख करती। मौजूदा सूरत हाल और 1369 वाली एम्बुलेंस की गैर मौजूदगी भी इसी जानिब इशारा कर रही थी। यकीनी तौर पर उस एम्बुलेंस को इस्तेमाल किया गया था। ये हालात हासे तशवीशनाक थे। अगर मैं जल्द अज जल्द साहिल का सुराग लगाने में कामयाब ना होता तो पता नहीं उसे कहां से कहां पहुंचाया जाता। मैंने सदफ की बात के जवाब में कहा, मैंने पहले तुमसे जो कुछ कहा था वो यहाँ पहुंचकर गलत साबित हो रहा है। मेरा ख्याल है हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। वो भली हम किसी और जगह रुककर इंतजार कर लेते हैं, किसी ऐसी जगह जहां से हम पार्किंग एरिया निगाह में रख सकें, लेकिन हम किसी की नजर में ना आए। मुमकिन है अगले चंद लम्हों में हमारी मतलूबा एम्बुलेंस अस्पताल में पहुंच जाए। इसकी तजवीज निहायत ही माकूल थी, लिहाजा मैं उसके साथ चलते हुए एक ऐसे गोशे में आन खड़ा हुआ जहां से अस्पताल का मेन गेट और पार्किंग पर गहरी नजर रखी जा सकती थी। हम लगभग दोपहर 1 बजे अस्पताल पहुंचे थे। मजीद 15 मिनट के इंतजार के बाद भी कोई हाथ रहा नतीजा जब बरामद ना हुआ तो मेरी बेकरारी आसमान को छूने लगी।
میں نے صدف سے کہا کہ مزید انتظار وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، ساحل کو ہسپتال نہیں لایا جائے گا، میرے خیال میں اسے کہیں اور پہنچایا جا چکا ہے، مگر کہاں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ہم ساحل تک کیسے پہنچیں گے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا اسے کہاں پہنچایا گیا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک جانب بڑھتے ہوئے کہا، آؤ ہسپتال کے معلوماتی کاؤنٹر سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساحل کا نہ صحیح ایمبولینس کا ہی کوئی سراغ مل جائے تو میں اس سراغ کو تھام کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ ہم دونوں چلتے ہوئے ایک ایسے کاؤنٹر پر پہنچے جہاں سے ہماری مطلوبہ معلومات ہمیں حاصل ہو سکتی تھی۔ وہ جدید سہولیات سے لیس ایک مہنگا پرائیویٹ ہسپتال تھا جہاں پر ہر شعبہ کمپیوٹر کے ذریعے آپس میں منسلک تھا۔ وہاں کی صفائی اور نظام نے مجھے خاصا متاثر کیا تھا۔ میں نے کاؤنٹر کے پیچھے موجود خوش شکل لڑکی سے پوچھا، سنیے، مجھے اپنی ایک عزیزہ کے بارے میں معلومات درکار ہے۔ آپ کی عزیزہ کا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ کوئی پیشنٹ آئیڈینٹی ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا کہ مریضہ کا نام ساحل ہے، میں اس کی کسی آئیڈینٹی سے واقف نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اسے ابھی ہسپتال میں لایا جا چکا ہے یا لایا جانے والا ہے۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ آپ بھی عجیب باتیں کر رہے ہیں؟ خیر میں دیکھتی ہوں ساحل نام کی کوئی پیشنٹ ہمارے ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئی ہے یا نہیں۔ بات کرنے کے دوران میں وہ کمپیوٹر سکرین بھی دیکھتی رہی اور کی بورڈ پر اس کی انگلیاں بھی حرکت میں رہیں۔ آدھے منٹ کی کوشش کے بعد اس نے اعلان فرماتے ہوئے کہا، سوری سر، ساحل نام کی کوئی مریضہ ہمارے ہسپتال میں داخل نہیں ہوئی، ممکن ہے ابھی اس کے ریکارڈ میں اندراج نہ ہوا ہو۔ میں نے ایک موہوم امید کی انگلی تھامتے ہوئے کہا، اسے ہسپتال میں آئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ اس نے میری تشفی کے لیے فون کا ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف کسی سے بات کرنے لگی۔ وہ ہسپتال میں آنے والے نئے مریضوں کے بارے میں دریافت کر رہی تھی۔ اس گفتگو میں 2-3 مرتبہ ساحل کا نام بھی آیا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کی عزیزہ کہاں سے آنے والی تھی؟ موزہ رکھا والی سے۔ میں نے بے ساختہ کہا، یہ ایک سرحدی گاؤں ہے۔ اسے آپ کی بھیجی ہوئی ایمبولینس نمبر 1369 میں ہسپتال لایا جانے والا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری طرف سے کسی سے بات کی اس نے اور ریسیور رکھنے کے بعد بولی، سر، آپ کی مریضہ ابھی تک اس ہسپتال میں نہیں پہنچی۔ میں ایمبولینس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، آپ توفیق صاحب سے معلوم کر لیں۔ یہ توفیق صاحب ہمیں کہاں ملیں گے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کوریڈور کی جانب اشارہ کیا تو میں توفیق نامی اس شخص کے دفتر کی لوکیشن بتا دی۔ ہم دونوں فوراً سے بیشتر توفیق کے پاس پہنچ گئے۔ اس کا تعلق ہسپتال کی انتظامیہ سے تھا۔ اس دوران میں نے اپنے ذہن میں ایک نیا لاہ عمل تیار کر لیا تھا۔ میں توفیق سے ساحل کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا مگر مطلوبہ ایمبولینس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا۔ ایک بات کا مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ساحل کو اس ہسپتال میں لایا گیا تھا اور نہ ہی لایا جانے والا تھا۔ پھر میں اس کا ذکر چھیڑ کر ہاں خود کو کیوں مشکوک کرتا؟ اگر مجھے مطلوبہ ایمبولینس کے بارے میں معلومات حاصل ہو جاتی تو میں ساحل تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ توفیق سے مختصر گفتگو کے بعد پتہ چلا کہ ہماری مطلوبہ ایمبولینس صبح سے گئی ہوئی ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آنے والی ہے۔ پھر اس نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ کریم کو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ عبد الکریم اس ایمبولینس کے ڈرائیور کا نام تھا۔ میں نے پوچھا، ایمبولینس صبح سے کہاں گئی ہوئی تھی؟ توفیق کے انکشاف نے میرے دل کی دھڑکن کو حد درجہ بڑھا دیا تھا۔ وہ جواب میں بتانے لگا کہ ایک ڈیڈ باڈی کو احمد نگر پہنچانا تھا۔ چودھری نظام الدین پچھلے 1 ہفتے سے ہمارے ہسپتال میں داخل تھے۔ گزشتہ رات ان کا انتقال ہو گیا۔ انہی کی میت کو احمد نگر پہنچانے کے لیے کریم ایمبولینس لے کر گیا تھا۔ میرے خیال میں وہ آنے ہی والا تھا۔ میں نے توفیق سے یہی بہانہ کیا تھا کہ میں ایمبولینس کے ڈرائیور سے ملنا چاہتا ہوں، اسی لیے وہ مجھے تسلی دے رہا تھا کہ کریم ہسپتال پہنچنے ہی والا ہے۔ میں نے توفیق سے مزید کوئی بات نہ کی اور ہم اس کے کمرے سے نکل آئے۔ میں نے توفیق سے عبد الکریم کی رہائش گاہ کا پتہ بھی معلوم کر لیا تھا۔ توفیق کے انکشاف نے مجھے بہت دور تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ احمد نگر رکھا والے کے شمال میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں چودھری نظام الدین کے نام سے بھی واقف تھا۔ اس کی زمینیں چودھری نوازش علی کی زمینوں سے ملی ہوئی تھی۔ جب میں شعیب گوری کے ساتھ متروک کنویں والے سونے کو بازیاب کرانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا تو چودھری نظام الدین کی اراضی بھی زیر بحث آئی تھی اور ہمارا اندازہ تھا کہ اس کی زمین استعمال کر کے ہم کنویں کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، لیکن کنویں اور چودھری نظام الدین کی زمین میں 1.5 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ اس لیے شعیب نے نظام الدین کے نام پر کراس کرنے کے بعد رامداس کی زمین کا انتخاب کیا تھا۔ رامداس کی زمین سرحد کی دوسری طرف واقع تھی جہاں سے متروک کنویں چند گز کے فاصلے پر تھے۔ پھر یہ کہ رامداس اور چودھری نوازش علی کے درمیان میں دشمنی بھی چل رہی تھی، چنانچہ بعد ازاں یہودی النسل برطانوی بزنس مین مسٹر نیل آرمر نے رامداس اور اس کی زمین کو استعمال کر کے برسوں سے دفن متروک کنویں کا راز پا لیا تھا۔ توفیق کے انکشاف کے بعد یہ تمام باتیں میرے دماغ میں چکرا رہی تھی۔ اگر وہ ایمبولینس چودھری نظام الدین کی ڈیڈ باڈی کو
अहमद नगर छोड़ने गई थी तो फिर कबीर शाह के हत्थे कैसे चढ़ गई? साहिल तो रखावाली में चौधरी नवाजिश अली की कैद में थी, वो एम्बुलेंस में किस तरह पहुंची? ये और इस नौयत के दीगर दर्जनों सवालात के अब सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस का ड्राइवर अब्दुल करीम ही जवाब दे सकता था। अगर वो मेरे हत्थे चढ़ जाता तो मैं उसकी जुबान खुलवा लेता, फिर साहिल तक पहुंचना मेरे लिए चंदा मुश्किल नहीं था। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि सदफ की आवाज मेरी समाज से टकराई। वजदान, आइंदा के लिए तुमने क्या सोचा है? क्या अस्पताल में रुककर अब्दुल करीम का इंतजार करें या किसी और तरफ चलना है? मैंने कहा मैं मजीद आधा घंटा इंतजार करूंगा, उसके बाद कोई और कदम उठाऊंगा। हम चलते हुए उस मुकाम पर आ गए जहाँ से गेट और पार्किंग की निगरानी की थी। सदफ ने कहा कि अगर हम प्रोग्राम के मुताबिक सफर करते रहते तो इस वक्त सैयदपुर में फरीद अंकल के पास होते, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि आइंदा चंद रोज तक हम सैयदपुर का रुख कर सकें। तुम कम से कम एक फोन करके अंकल को इस वाक़े की इतला तो दे दो। मैंने इस्ताशी नजर से सदफ को देखा और कहा तुम यहीं रुक कर निगरानी जारी रखो, मैं एक फोन करके आता हूँ, अभी वापस आ जाऊंगा। अस्पताल में आने वालों की सहूलत के लिए कई मकामात पर पब्लिक कॉल काउंटर बने हुए थे। मैं ऐसे ही एक काउंटर की जाने बढ़ गया। मैंने सैयदपुर में फोन मिलवाया। थोड़ी देर के बाद फरीद पाशा लाइन पर आ गया। यार वजदान, तुम कहाँ गायब हो? मेरी आवाज सुनते ही वो जल्दी से बोला। मैंने कहा कि मैं इस वक्त न्यू कैंपस लाहौर के एक प्राइवेट अस्पताल में खड़ा हूँ। फिर मैंने अस्पताल का नाम भी बता दिया। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में बेपनाह तशवीश थी। हैरियत तो है। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में फरीद पाशा को बताया कि मज़कूरा अस्पताल में मैं क्या कर रहा हूँ और ये कि हैरियत बिल्कुल नहीं है। वो गंभीर आवाज में बोला, वजदान, तुमने जो हालात बताए हैं उनकी रोशनी में मैं कह सकता हूँ कि साहिल को अस्पताल में नहीं लाया जाएगा। मुझे तो ये कोई और ही चक्कर मालूम हो रहा है। तुम वहाँ वक्त जाया ना करो। फिर क्या करूँ? बेसाख्ता मेरी जुबान से फिसल गया। इन अल्फाज में अच्छी खासी कड़वाहट थी। वो तसल्ली अमीज लहजे में बोला, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो। मेरा मशवरा यह है कि तुम पहली फुर्सत में इस एम्बुलेंस या उसके ड्राइवर को ट्रेस करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी ये कोशिश कामयाब होगी तो साहिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, मैंने कहा। फरीद पाशा ने कहा कि चौधरी निजामुद्दीन की मौत की खबर सैयदपुर पहुंच चुकी है। कैसी इत्तेफाक की बात है कि आज अब्बाजी की तदफीन भी है और चौधरी निजामुद्दीन की भी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बात के इख्तिताम पर उसकी आवाज भरा गई। मुझे अफसोस है पाशा कि मैं तुम्हारे वालिद के जनाजे में शिरकत नहीं कर सकूंगा, मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा। साहिल का मामला मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूँ। वो बुरा मनाए बगैर बोला, इसलिए तुम्हें परेशान या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। तुम फिक्र न करो। इन नाजुक तरीन हालात में भी मैं तुम्हारे काम आने की कोशिश करूंगा। तुम मुझे नादुम कर रहे हो फरीद, मैंने जल्दी से कहा। तुम पर जो गुजर चुकी है मुझे इसका एहसास है। फरीद पाशा ने एक हल्का सा कहका लगाया था। हम उस कहके में वो महसूस तरंग मौजूद नहीं थी जो पाशा का हासा थी। बहरहाल उसकी जिंदा दिली किसी चैलेंज की मोहताज नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि वो किन आहनी असाब का मालिक है। कहके के एहतमाम पर उसने कहा, वजदान, मुझ पर तो गुजर चुकी जो गुजरना थी, लेकिन तुम पर गुजर रही है, इसलिए मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। पाशा हर हाल में दोस्ती निभाना जानता था। उसकी आवाज जज्बात से लबरेज थी। चंद लम्हात के तवक्कुफ के बाद उसने कहा कि अब्बाजी की तदफीन असर और मगरिब के दरमियान होगी। तुम 1 घंटे बाद मुझे फोन करो। मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ कि रखावाली में क्या पोजीशन है। अगर साहिल वहां से रुखसत हो चुकी है तो मुझे मालूम हो जाएगा। मैंने रखावाली में मौजूद अपने बंदू को हाथ टाइट कर रखा है। मैं अभी उनसे रिपोर्ट लेता हूँ। बावजूद कोशिश के भी मैं पाशा से ये न कह सका कि वो खुद को इस बखेड़े में न डाले और पूरी तवज्जो से अपने मामलात निपटाए। इंसान बुनियादी तौर पर बहुत ही खुदगर्ज वाक़या हुआ है। मुझे इस बात का एहसास था कि फरीद पाशा खुद एक बहुत बड़े इम्तिहान में मुब्तला था, लेकिन मुझे अपनी विपता उसे सुनाना पड़ी। साहिल के मामले में मैं बेइख्तियार सा होकर रह गया था। इसके सिवा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता था और अब तो वो भी कई दिनों से दिखाई नहीं दी थी। सिर्फ उसकी याद ही जिंदगी का हिस्सा बनी हुई थी। मैंने 1 घंटे बाद पाशा को फोन करने का वादा कर लिया। उसने पूछा कि गुलबर्ग और फाजले कॉलोनी वाली कोठियों का क्या हाल है। मैंने उसकी परेशानियों को बढ़ाना मुनासिब न समझा और कहा कि तुम उधर से बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं था। पाशा के चले आने के बाद वहां जो हालात पेश आए थे वो हासे संगीन और गैर मामूली थे। अगर मैं उसकी तफसील में पड़ जाता तो पाशा की जहनी उलझन में इजाफा ही होता। साहिल वाला मामला तो बीच में आ गया था। मैं तो सिर्फ उसे अपने सैयदपुर ना पहुंचने की वजह बताना चाहता था। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।